آپ تمام لوگوں کا میرے چینل میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ لوگ سے اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ سکے۔ میری یہ خدمت صرف اردو والوں کے لیے ہے جن تک گرامر کی دوسری ویڈیوز نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ اس سے پہلے گرامر کی بہت سی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں۔ میرے چینل پہ جا کے آپ پلے لسٹ میں جا کے اردو گرامر کے نام سے ایک پلے لسٹ ہم نے بنائی ہے، وہاں سے جا کے اردو کی دوسری گرامر کی ویڈیوز آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اسم کی بحث کی گئی ہے، اسم کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، فعل کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اسی طریقے سے ہمصوت الفاظ ہیں، سینونیم ہیں، اور اس کے بعد جو ہے متضاد وغیرہ ہیں، بہت ساری بحثیں ہیں، صنعتوں پہ بحثیں ہیں۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جو لوگ اردو گرامر یا اردو صنعتوں سے متعلق کچھ پڑھنا یا جاننا چاہتے ہیں تو میرے گرامر کی پلے لسٹ میں جا کر وہ ان ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی تمہید کے میں محمد سلمان آپ کے سامنے آج کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو ہے مفرد الفاظ، مرکب الفاظ اور مرکب جملے پر۔ مفرد الفاظ، مرکب الفاظ اور مرکب جملے پر منحصر ہے۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے اس پر کچھ ایسی بحثیں ہیں جو کہ دوسری جگہوں پر نہیں ملتی ہیں، اور میں نے بہت ضروری سمجھا کہ اس پر بحث کی جائے، چونکہ اگزام وغیرہ میں جب آ جاتا ہے کمپٹیشن میں تو بہت سارے لوگ اس کی جواب نہیں دے پاتے ہیں، تو ایسی ویڈیو میں نے محسوس کی کہ ہونی چاہیے۔ تو آج کی بحث ہماری جو ہے مفرد الفاظ اور مرکب جملے پر ہے۔ تو مفرد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مفرد الفاظ کسے کہا جاتا ہے۔ تو مفرد ایک کو کہتے ہیں، یعنی جو لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو، لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو، حرف سے مل کر تو بنا ہو لیکن دو لفظ یا تین لفظ اس میں جوڑے نہ گئے ہوں، جیسے کتاب ہے، قلم ہے، کاپی ہے، پینسل ہے، ٹوپی ہے، گھڑی ہے، یہ سب ایک کلمے ہیں، ان سے ایک ہی معنی سمجھے جائیں گے، ایسے کلمے الفاظ مفرد کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ مفرد۔ ایک مرتبہ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں مفرد ایک کو کہتے ہیں، یعنی جو لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو، جیسے کتاب، قلم، کاپی، پینسل، ٹوپی اور گھڑی، یہ سب ایک کلمے ہیں، ایک لفظ ہیں۔ تو اگر ایک لفظ ہے یعنی دو لفظوں سے وہ مل کر نہیں بنا ہے تو ایسے الفاظ مفرد الفاظ کہلاتے ہیں، ان سے ایک ہی معنی سمجھے جائیں گے، ایسے الفاظ مفرد کہلاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ مفرد الفاظ کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں۔ مرکب الفاظ، اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہیں، حالانکہ وہ بظاہر مفرد معلوم ہوتے ہیں، جیسے شریف النفس۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ دو لفظوں سے مل کر یہ بنا ہے شریف النفس، شریف و نفس سے مل کر بنا ہے شریف النفس۔ گلدان، اب دیکھیے گلدان میں گل الگ چیز ہے اور دان الگ چیز ہے۔ دان مانے کوئی ایسی چیز جس میں کوئی چیز رکھی جائے، پان دان، اگل دان، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔
तो देखिए गुलदान, गुल फूल रखने का चीज, उगलदान जिसमें पान खा के थूकते हैं लोग आमतौर पे, उसे उगलदान कहा जाता है। और उगलदान, पानदान जिसमें पान रखा जाता है उसको पानदान कहा जाता है। खुश मिजाज, देखिए खुश अलग चीज है, मिजाज अलग चीज है, लेकिन दोनों मिलकर जो है, दोनों लफ्ज मिलकर एक नए माने की तरफ हमें लेके जाते हैं। खुश मिजाज मतलब अच्छे मिजाज का आदमी, खड़ूस ना हो जो, उसको खास खुश मिजाज कहा जाता है। कुतुब खाना, कुतुब माने होता है, कुतुब किताब की जमा है, अरबी के जमा है, जिसके माने होते हैं लाइब्रेरी। कुतुब खाना, देखिए कुतुब माने होता है किताबों की जमा कुतुब, और खाना मतलब जगह। अब वो खाना कोई भी सा हो सकता है, मतलब आप चाय खाना भी हो सकता है, और बहुत सारे खाने, जगह को खाना आमतौर पे कहा जाता है ऐसी जगह को। कुतुब खाना जहां पे किताब रखी जाती है उसको कुतुब खाना कहा जाता है। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं सफेद पोश, सफेद पोश, सफेद कपड़े में लिबास, इसमें भी देख रहे होंगे कि सफेद अलग चीज है, पोश और पोश अलग चीज है। सियाह माने होता है ब्लैक, कल्ब माने होता है दिल, सियाह कल्ब यानी ब्लैक दिल वाला, काला दिल वाला, जिसका दिल साफ ना हो, चोर हो जिसके दिल में, उसको आमतौर पे सियाह कल्ब कहा जाता है। तो इससे आपको समझ में आया होगा मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं। आइए एक मरतबा फिर उसके डेफिनेशन को हम देखते हैं और उसकी मिसालों को देखते हैं। उर्दू जबान में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो दो लफ्जों से मिलकर बने हैं, जो दो लफ्जों से मिलकर बने हैं। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, और उसमें जो है मुफरद अल्फाज में जो एक ही लफ्ज से बना हो उसमें दो लफ्ज ना शामिल हों तो उसको हम मुफरद अल्फाज कहते थे। लेकिन जब दो लफ्ज मिल जाएं किसी लफ्ज को, कोई नया लफ्ज क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, तो हम उसी को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। तो बहरहाल उर्दू जबान में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो दो लफ्जों से मिलकर बने हैं, हालांकि वो बज़ाहिर मुफरद मालूम होते हैं, जैसे शरीफुन नफ्स, गुलदान, उगलदान, पानदान, खुश मिजाज, कुतुब खाना, सफेद पोश या कल्ब वगैरह। तो यहां पे वगैरह लिख दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा हमारे ख्याल से, वगैरह। अब आ जाइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुरक्कब जुमले किसे कहा जाता है। भाई मुरक्कब जुमले और इसकी तारीफ क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं मुरक्कब को। तो ऐसा जुमला जो जुमलों से मिलकर बना हो, ऐसा जुमला जो दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, यहां दो या दो से, दो या दो से ज्यादा दो या, मुरक्कब जुमले किसे कहते हैं? मुरक्कब जुमले ऐसा जुमला जो दो या दो से ज्यादा जुमलों से मिलकर बना हो, मुरक्कब जुमला कहलाता है। जैसे मैं आया और वह चला गया, सूरज सुबह निकलता है और शाम को गुरूब होता है, मैंने उन्हें रोका मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वगैरह। इसमें आप देख रहे होंगे एक चीज कि एक बात खास देख रहे हैं आप कि दो जुमले मिलकर बन रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? दो जुमले, मैं आया और वो चला गया, मैं आया और वो चला गया, सूरज सुबह को निकलता है और शाम में गुरूब होता है, शाम में गुरूब होता है, ये अलग जुमला है, और सूरज सुबह को निकलता है एक अलग जुमला है, लेकिन और लगा के दोनों जुमलों को जो है जोड़ दिया गया। इस तरीके से जब जोड़ा जाता है तो हम उसी को मुरक्कब जुमला कहते हैं। और आखिरी जो है सेंटेंस, आखिरी जुमला है, मैंने उन्हें रोका मगर उन्होंने, मैंने रोका एक अलग जुमला है, मैंने उन्हें रोका एक अलग जुमला है, अपने आप में मुकम्मल जुमला है, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ये अलग जुमला है। मगर लगाकर एक और जुमले को जोड़ दिया गया।
अगर इस तरीके से जोड़ा जाता है तो उसी को उर्दू में मुरक्कब जुमला कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है मुफरद लफ्ज और मुफरद जुमला और मुफरद इसी तरीके से मुरक्कब अल्फाज और मुरक्कब जुमले अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आइए एक मर्तबा आज के जो है इस वीडियो को हम दोहरा लेते हैं, देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा और कितना गेन किया इसको, कितना। तो आज हमने पढ़ा मुफरद अल्फाज और इसी तरीके से मुरक्कब अल्फाज और मुरक्कब जुमले के बारे में हमने देखा। मुफरद अल्फाज हमने देखा, मुफरद अल्फाज को कि मुफरद अल्फाज उसको कहते हैं, एक को कहते हैं, यानी जो दो लफ्जों से मिलकर बना हो, दो लफ्जों से मिलकर ना बना हो, जैसे किताब, कलम, कापी, पेंसिल, टोपी और घड़ी, ये सब एक कलमे हैं। इनसे एक ही माने समझे जाएंगे, ऐसे कलमे या अल्फाज मुफरद कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा पहले में। और दूसरा हमने पढ़ा मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि उर्दू जबान में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो दो लफ्जों से मिलकर बने हैं, हालांकि वो बज़ाहिर मुफरद मालूम होते हैं, जैसे शरीफुन नफ्स, गुलदान, उगलदान, पानदान, खुश मिजाज, कुतुब खाना, सफेद पोश, सियाह कल्ब वगैरह। तो इसमें हमने देखा कि दो अल्फाज से मतलब दो लफ्ज मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं। तो इस तरीके से जैसे इसमें हमने देखा शरीफ नफ्स में शरीफ अलग है, नफ्स अलग है, गुलदान में गुल अलग है, दान अलग है, लेकिन दोनों मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं मुकम्मल। सियाह कल्ब में भी ऐसे ही है। इस तरीके से हमने आखिर में पढ़ा मुरक्कब जुमले। मुरक्कब जुमलों के बारे में क्या पढ़ा हमने? ऐसा जुमला जो दो या दो से ज्यादा जुमलों से मिलकर बना हो, मुरक्कब जुमला कहलाता है। दो या दो से ज्यादा जुमलों से मिलकर बना हो। तो हमने देखा कि मैं आया और वो चला गया। हमने जो है मैं काफी था, इसमें मैं आया काफी था और लेकिन एक और लगा के वो जुमला एक और सेंटेंस को जोड़ दिया गया। इसी तरीके से सूरज सुबह को निकलता है और शाम को गुरूब होता है। सूरज निकलता है, इसमें भी हमने देखा कि एक सूरज सुबह को निकलता है एक जुमला है और शाम को गुरूब होता है एक अलग जुमला है और लगा के उसको जोड़ दिया गया। इस तरीके से ये मुरक्कब जुमला बन गया। मैंने उन्हें रोका मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हमने देखा था कि एक साथ में जो है दो जुमले आए हैं इसमें और दोनों को मगर लगा के जोड़ दिया गया है। मैंने उन्हें रोका ये एक जुमला है और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी ये एक अलग जुमला है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसको कहते हैं मुरक्कब जुमले और किसको कहते हैं मुरक्कब अल्फाज और किसको कहते हैं मुफरद अल्फाज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।